غزالی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین قرضے بہت زیادہ ہیں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا ہے دنیا کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے, آخرت کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے. ہمیں دنیا آخرت کے دونوں موتی جب بھی ملیں گے اس در سے ملیں گے. قرضوں کی درخواست فریاد عرض کی کہ قرضے ہیں, بوجھ ہے, فقر ہے, غربت تنگ دستی ہے, آسانیاں ختم ہو گئی ہیں. حضور نگاہ فرمائیں, دعا فرمائیں. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, کوئی دعا فرمائیں. غزالی کرم اللہ وجہ نے انہیں جو دعا فرمائی اس دعا کو میں خود سال ہر سال سے بتا رہا ہوں اور میں خود پڑھ رہا ہوں. میں نے جس کو بتایا قرضے اتر گئے. یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے, صدیوں نہیں چکا سکتے. ان کا احسان ہے, ان کا احسان ہے. تو کیا فرمایا اب غور سے سنیں. آپ نے اسے بٹھایا, اسے تسلی دی. تسلی دن کے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے حبیب حضور کملی والی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر اور غربت نے مجھے گھیر لیا ہے, تنگ دستیوں نے میری زندگی کو تنگ کر دیا. مفہوم ہے, اپنا غم سنایا, اپنا درد سنایا. اب جو میرے حضور آقا نے جو اس کو بتایا تھا, غزالی فرماتے ہیں سائل میں تجھے وہی بتاتا ہوں اور تو وہ کر لے, اور جب تو وہ کرے گا تیری سب مشکلیں آسان. مجھے سہل ہو گئی منزلیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں تمہارے چراغ راہوں کے بجھ جاتے ہیں, جب سے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی نہیں بجھتے. میں تو خزاں میں بھی بہار میں رہتا ہوں. ساری دنیا میں کرائسس ہیں, ساری دنیا میں پریشانی ہے, رزق بند, کاروبار بند, نوکریاں ختم ہیں, لیکن مجھے کوئی غم نہیں, مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے کوئی الجھن نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. ہر وقت جو خزاں تھی جہاں ہاتھ ڈالتا تھا ہر چیز مٹی تھی, قدم آگے بڑھاتا تھا گرتا پیچھے تھا. دشمن لوگ تھے میرے, مسائل مشکلات الجھنی میرے گلے کا توق تھی. زنجیروں میں بندھا ہوا وہ جادو کی بندشیں ہیں, وہ دشمن کی ہیں, وہ حاسد کے حسد کی ہیں, یا میرے گناہوں کی ہیں, یا تقدیر کا نظام ہے. خزاں کے رخ بھی بدل گئے, جو خزاں میرے سامنے آئی تھی اس کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. اب اسے کیا فرمایا آپ نے, اب ذرا غور سے سنیں. ہستیوں کے موتی ہیں اور وہ مسنون دعائیں ہیں اور وہ مسنون اعمال ہیں اور ایسی دعائیں ہیں جو جن کے ساتھ سند ہے, جن کے ساتھ روایت ہیں, جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں. تسبیح خانے کا ممبر شرک نہیں دیتا, تسبیح خانے کا ممبر بدعت نہیں دیتا, تسبیح خانے کا ممبر ایسی باتیں نہیں بتاتا جس کی بنیاد نہ ہو, جس کے پیچھے سند نہ ہو, کوئی ریفرنس حوالہ نہ ہو. نہیں. واٹس ایپ اور فیس بک پہ اکابر پر اعتماد ایک پیج ہے, اس کو لکھیں گے میرے ہر وظیفے کی سند, ہر وظیفے کا حوالہ, ہر روایت کی سند, ہر بات کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اب کیا فرمایا غزالی نے اس سائل کو, اس منگتے کو, اس بھکاری کو, فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دعا کی اگر تھوڑی سی توجہ آپ لے لیں, اللہم اکفنی بحلالک, اللہ میری حلال سے اتنی کفایت کر, اتنا دے, تھوڑا نا, تھوڑی سی کفایت نہیں ہوتی. لفظ کفایت سے آپ لفظ کفایت کو غور سے سنیں. اللہم اکفنی, اللہ میری حلال سے کفایت کر دے, مجھے حلال اتنا دے, اتنا دے, اتنا دے, میری نظر کسی پہ نہ جائے. ایک بندہ 5 مرلے کی گاڑی پہ جا رہا ہو اور اسے جو ہے 1.25 مرلے کی گاڑی نظر آئے, اسے جھانک کے دیکھے گا. ایک بندہ بہت بڑی گاڑی پہ جا رہا ہو, ہاتھی پہ جا رہا ہو, ہاتھی جتنی گاڑی ہو, دھپ دھپ کرتا ہوا گاڑی پہ جائے,
और एक छोटी सी गाड़ी हो जिसका सलेंसर भी टूटा हुआ, जिसका टायर भी हिल रहा, जिसके दाएं बाएं से खिड़कियां भी खुद हारन बनी हुई हैं, उस गाड़ी को झांक झांक के देखेगा? वो कहेगा मेरी गाड़ी अपनी इतनी है। इसे कहते हैं किफायत। गाड़ी ने उसकी किफायत कर दी, झांक के देखने की जरूरत नहीं है। या आजिजी के साथ या तकब्बुर के साथ वो जा रहा है। बड़ी गाड़ी है, बैठ के अगर आजिजी आ जाए बड़ा मुश्किल है। मैंने इसको बैठ के भी देखा है, आजमा के भी देखा है। आजिजी आ जाए, अपने आप को बंदा संभाल ले, बड़ी सवारी है बैठ के, बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभालने वाले संभाल लेते हैं। अल्लाह मगफिनी भी हलालिका, ऐ मौला मेरी किफायत कर, और इतनी किफायत कर पर कर हलाल से। अल्लाह ऐसा माल जो मशकूक हो मेरी नस्लों में नहीं रहेगा, ऐसा माल जिसके पीछे कोई दूसरी कहानी हो। अल्लाह मेरी नस्लों में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत, वकार, शान शौकत का कभी जरिया बन ही नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता। अल्लाह मगफिनी बे हलालिका, मौला मेरी किफायत कर और इतनी कर हलाल से। अब आगे सुन, अल्लाह मगफिनी बे हलालिका अन हराम का, हराम नहीं। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या? अल्लाह मगफिनी बे हलालिका अन हराम का, हाँ हराम नहीं। कुत्ती 5, 6, 7। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने सड़क के किनारे बकरी और बकरी का बच्चा मारा नहीं देखा, कुत्ते बेबहा मरे देखे। एक दम मैं सड़क के किनारे जा रहा था, मैंने कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर गिनना छोड़ दिए मैंने, कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर मैंने गिनना छोड़ दिया। अल्लाह मगफिनी में हलाल का अन हराम का, वाह 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 अली, सुभान अल्लाह। इन हस्तियों का शुक्रिया, हमें मोती क्या देकर गए और हमारे मसाइल हल करा गए। अगननी बेफजल का, अल्लाह मुझे पता है जिसको जो गनी होता है होता तेरे फजल से है। हाँ मेहनत शर्त है। ये फकीर की बात जरा गौर से सुनिएगा, जो भी जिसको मिला है उसकी रहमत और फजल से मिला है। और मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेहनत शर्त है। मैं आपको नहीं कहता, आपको नहीं कहता। बस नबी शरीफ में कुछ लोग बैठे थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कौन हो? कहा नहनु मुतवक्किलीन। दुर्रा उठाया, रखा 3-4 चेल कोंडा हेट कर देता कि चलो और जाके रोजी करो और मेहनत करो और जाके जान मारो और मेहनत करने के बाद कहो कि अल्लाह अब तू अता कर, तेरी तकसीम है। तस्बीह खाना जंगल का राही नहीं बनाता। तस्बीह खाना एक जगह बैठे और दिन रात चिले करते रहे नहीं। घर भी, जिंदगी भी, मुआशरा भी, वालिदैन भी, दफ्तर, दुकान, तमाम निजाम। तस्बीह खाना एक मंजिल देता है, एक रास्ता देता है। वह अगननी, मौला मुझे गनी कर दे बेफज़ल का। ये बड़ा राज है। और अगर किसी को समझ आ जाए, मेहनत शर्त है, पर मेहनत से आज तक आपने किसी को मालदार होते नहीं देखा। अगर मेहनत मालदार होने का जरिया होती तो जितनी मेहनत करने वाला होता उतना मालदार ज्यादा होता। हड्डियां घिस गई मेहनत करते करते। मैंने 4-4 नस्लों को आंखों से देखा, आज भी गरीब हैं, आज भी फकीर हैं, आज भी तंग दस्त हैं। मेरी 4 नस्लें तो मेरे सामने हैं। मैंने उनके बूढ़े परदादा को देखा था गुर्बत में, फिर दादा को देखा गुर्बत में, फिर वालिद को देखा गुर्बत में, अब उनको देखा गुर्बत सफेद पोशी के अंदर। मेहनत शर्त है। मैं आज आले रसूल का पैगाम दे रहा हूं आपको, मोहम्मद आले मोहम्मद के तोहफे, नेमतें और मोती दे रहा हूं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत से कोई मालदार हो गया हो। यह बात मेरे कमली वाले की जुबान से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमा रहे हैं और इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं कि याद रख, वक्त जो लगता है, जो रंग लगता है, वो किसी दुआ से लगता है, वो नसीब और मुकद्दर से लगता है। तू कहे मेहनत से वक्त लग जाते हैं, ये तेरी कोताही है, ये तेरी सोच की कमी और नादानी है। वह अगननी बेफज़ल का, बोला मुझे गनी कर, पर मुझे पता है तेरे फजल से मैं गनी होगा, तेरी रहमत से,
तेरी एक नजर से वो जिस पे डाल दे। यहां लाहौर में एक मालदारों की सोसाइटी है, मैं उसे मालदारों की बस्ती कहता हूं। मुझे पुरानी बात याद है, कहता है मैं थाली के ऊपर बिस्किट बेचता था, 1 आने के 2, 1 आने के 3, 1 आने के 4 बिस्किट बेचता था। निहायत गरीब था। रब ने मेरा हाथ पकड़ा, वक्त लगा, मैं जिस सोफे पे बैठा था, बड़ा सोफा था, उसके पड़े थे, मुझसे कहने लगा आज जिस सोफे के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, इस सोफे के ऊपर जितने पत्रे लगे हुए हैं, जितना इसके ऊपर, ये सारा सोना है। और मैंने गौर से देखा तो वो सोना था। और मेरा गुमान है, ऐसे अंदाजा है, क्योंकि मैं हकीम तोले माशे, हम रतियों को तोलते हैं दवाओं को, मेरे ख्याल में कुछ 1.25 किलो एक सोफे पे सोना था, कमोबेश अंदाजा। और सोफों की लाइनें लगी हुई थी। अगननी पे फजल का, और अगला लफ्ज सुने, दुआ भी पूरी, मकसद भी पूरा और काम भी हो गया। अमन सिवा सखिया का, मुझे दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना बनाना, अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना। किसी का मोहताज, किसी का मंगता, किसी दर दर का भिखारी ना बनाना। फरमाए जा ये दुआ पढ़। अल्लाह अकबर। अज़ाली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जा ये दुआ पढ़, अल्लाह मक्फिनी बिहलालिका। कभी जॉब, कभी नौकरी, कभी ना मांगना, कहना मौला रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खोल, चाहे वो झाड़ू देने में है, चाहे वो आला कुर्सी में है, चाहे वो वजारत में है, चाहे वो फक्र में है, मौला रिज़्क़ के हलाल पर बरकत वाले दरवाजे खोल। ये पैगाम है, ये पैगाम है अज़ाली का, हसनैन के बाबा का ये पैगाम है, इमाम हसन के वालिद का, इमाम हुसैन के वालिद का और मोहसिन के वालिद का ये पैगाम है। कर्जों से नजात के लिए, फाइनेंशियली हालात के क्राइसिस और जिंदगी की मुश्किलात के लिए, और जब सब कुछ लुट चुका उसके लिए, इस दुआ को आप सिर्फ 7 दफा सुबह शाम पढ़ लें, बस मामूल बना लें, सिर्फ 7 दफा सुबह शाम। और फिर अगर कोई दीवाना है तो 1 साल फिर इस दुआ को पढ़ के देखे, सिर्फ 1 साल, बस 1 साल 7 दफा पढ़ लें सुबह शाम। पर ये फैसले करवाती है, और फैसले भी ऐसे, अल्लाह, और हैरत अंगेज फैसले और बहुत अजीब फैसले। जिंदगियों की तंगियां खत्म हो जाती हैं और जिंदगियों की खुशहालियां और राहतें और बरकतें जिंदगियों में शामिल हो जाती हैं। सोचें, दुआ लाया जिब्रील, जुबान पे अदायगी हुई मेरे हबीब, और फैलाया अली करम अल्लाह वजहुल करीम। अब देखें दुआ की तरतीब देखें। और फिर 14 सदियों से ज्यादा अरसा हो गया है इस दुआ को पढ़ने वाले तवंगर हुए, मालदार हुए। इस दुआ को पढ़ने वालों में की नस्लों में रब ने बरकतों के दरवाजे, वुसअतों के दरवाजे, रहमतों के दरवाजे खोले। तारीख गवाह है और तारीख बता रही है, इस दुआ को पढ़ने वाले का आज तक मैंने मायूस नहीं देखा और तारीख ने मायूस नहीं देखा।